Hello students, welcome back to this YouTube channel, The Quest Maths for All by Toor Sir. This is Dr. RPS Toor. ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਰਮ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ 100% ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਓਕੇ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਇੰਟਰਵਲਸ ਫॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ कि वो दसो भी किहड़े इंटरवल विच इंक्रीजिंग ने और किहड़े विच डिक्रीजिंग ने और फस्ट क्वेश्चन जिवें वैसे आपां इहदे विच 9th एग्जाम्पल विच ऑलरेडी कर चुके हैं एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स जो मैं तुहानूं प्रीवियस लैक्चर दे विच मैं करवाया सी तुहानूं और हुण देखो कि थोड़ा फर्दर अगे दस रहा आपां उहदे विच तां कर चुके हैं कॉस दा तां कीता सीगा एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हुण साइन 3x दा ट्रिपल एंगल दे विच आ रहा है और x किहदे नाल बिलोंग कर रहा है 0 to pi by 2 ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 0 to pi by 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੱਢ ਲਓ ਬਸ f dash x is equal to minus plus 3 cos of 3x sin ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ cos 3x और 3x ਦਾ 3 ਠੀਕ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ तो cos 3x ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ और cos 3x ਕਦੋਂ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ cos pi by 2 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 3x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ pi by 2 ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ pi by 6 ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 0 to pi by 2 ਆ ਇੰਟਰਵਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ ਹੈ that is pi by 6 ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 0 to pi by 2 ਵਾਲਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਇੰਟਰਵਲਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਉੱਪਰ for we are checking 0 to pi by 6 ਹੁਣ ਵਿੱਚ 0 ਇੰਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ pi by 6 0 ਇੰਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਲੋਜ਼ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ और ਇੱਧਰ ਓਪਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਹੈ और दूसरा ਕਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ दूसरा इंटरवल हो जाएगा अपना पाई बाय 6 ओपन रहेगा और पाई बाय 2 जोड़ा है वो क्लोज क्योंकि दस रहा है कि 0 और पाई बाय 2 इंक्लूड करने हैं 0 भी इंक्लूड करना है पाई बाय 2 भी इंक्लूड करना है राइट इन्हां दोनों के ऊपर आप चेक करना है तो फस्ट तुसी ले लो फिर इस फंक्शन के ऊपर आप देखते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करते हैं कि 0 टू पाई बाय 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ x है ना ये x ਦੀ ਲਿਮਿਟਸ ਨੇ 0 ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ x ਇੱਥੇ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ लेकिन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਂਗਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 0 ਔਰ pi by 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਤਾਂ 3 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 0 is less than or equal to x x is less than or equal to pi by 6 इधर ओपन है ना ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਆਏਗਾ 0 is less than equal to 3x less than equal to pi by 2 less than 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂ ਤੇ pi by 2 ਆ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ 0 ਔਰ pi by 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ 3x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 0 ਔਰ pi by 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ 0 to pi by 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਫਸਟ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ cos ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ f dash x is greater than 0 cos पॉजिटिव रहेगा ना तो इथे s क्वाड्रेंट दे लिए राइट ये पॉजिटिव रहेगा दैट मींस fx is equal to sin of 3x is increasing in 0 pi by 6 semi open interval ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰਹੇਗਾ ਰਾਈਟ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ s ਇੰਟਰ ਹੁਣ x ਕਿੱਥੇ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ x ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੈਮੀ ਇੰਟਰਵਲ ਟੂ pi by 2 ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣੇਗਾ ਕਿ pi by 6 less than x x is less than or equal to pi by 2 ਹੁਣ फिर 3 एंगल करो है ना तो
ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇ 3 ਮਲਟੀਪलाई कर रहे हैं तो इधर मल्टीप्लाई करांगे तो π/2 आ जाएगा, 3 दूना 6 है ना, और इधर आएगा 3x और राइट इनइक्वालिटी दे आ जाएगा 3π/2। 3π/2 का मतलब की होएगा थर्ड क्वाड्रेंट दे विच है ना, π/2 तो लैके थर्ड क्वाड्रेंट दे विच एस सैकेंड और थर्ड दे विच cos की हुंदा है, cos ले रहे हैं ना, f' चेक करना है ना कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो इत्थे की लिखांगे इंप्लाइज f' is negative in π/2 to 3π/2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। this means that implies fx is, ठीक है, fx is decreasing in ਕਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, π/6 to π/2, राइट। आ भी सैमी इंटरवल है, तो इस इंटरवल दे विच ये इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल दे विच ये डिक्रीजिंग है, राइट। हुण आ जाओ नैक्सट एग्जांपल दे विच जिहदे विच तुहानूं साइन और कॉस दोनों ही चेक करके दिखाने हैं कि ये दोनों फंक्शन 0 और 2π दे विच इंक्रीजिंग होणगे कि डिक्रीजिंग होणगे। देखो एग्जांपल्स आपां कर लैने सारी, ठीक है। इहदे बेस दे उपर तुहानूं क्वेश्चनस जिहड़े ने, तो जदों तुसीं हुण एक्सरसाइज डिस्कस करनी होएगी ना, एक्सरसाइज नूं ट्राई करोगे तो डेफिनेटली पहले एग्जाम्पल्स चंगी तरह कर लियो, एग्जाम्पल चंगी तरह समझ लियो, ठीक है, फिर जाके थोनू एक्सरसाइज बड़े वधिया तरीके नाल आएगी। ओके, हुण साइन और कॉस दोनों कंबीनेशन विच ने इस पॉलीनोमियल दे विच, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलीनोमियल है, पर अपन इंटरवल्स पता करने हैं किस इंटरवल दे विच इंक्रीजिंग है, किस विच डिक्रीजिंग है, और टोटल इंटरवल अपने को हैगा 0 to 2π, राइट। तो बिल्कुल वही सेम तरीका ही लो, पहले तो f' जो है वो आ जाएगा साइन दा कॉस और कॉस दा साइन। हुण इन्हां नूं मैं तुहानूं की दसदा हुंदा कि इन्हां नूं 0 दे बराबर करके x दी वैल्यू कड्डो, 0 और 2π दे विच आनी चाहिदी है, तो cos x इज इक्वल टू sin x, वो कदों बराबर होंदे ने, जदों टेंजेंट x दी वैल्यू होवे, टेंजेंट x इज 1, ठीक है। तो x कदों कदों 1 होएगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। एक तो ये π/4 ते होएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का मतलब की बनेगा फिर तुहाडे कोल कि 5π है ना, π+π, और दूसरे विच किहड़ा होएगा फिर π+π/4, तो कितना बन गया फिर टेंजेंट ऑफ 5π/4, जिहदे विच टेंजेंट की वैल्यू +1 रहेगी, तो x की आ गया अपने को, x आ गया π/4 एंड 5π/4। ये तुहानूं जिहड़ियां आ जिहड़ी तुहानूं हेल्प करेगी ना, ये तुहानूं +1 वाली नॉलेज हेल्प करेगी कि किहड़े क्वाड्रेंट दे विच किहड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंदी है, थर्ड विच पॉजिटिव होंदी है टेंजेंट। तो एक तो टेंजेंट फर्स्ट विच जदों x की वैल्यू +1 आई है, तो एक तो फर्स्ट विच आएगी, तो वो तो π/4 हो गया, और थर्ड का मतलब है π+π/4 करांगे तो 5π/4, दोनों वैल्यूज दे लई टेंजेंट की वैल्यू 1 रहेगी, समझ आ गया। हुण अपने को टोटल इंटरवल जिहड़ा सीगा वो 0 to 2π सी, हुण वो किहड़े किन्ने इंटरवल्स विच वंड जाएगा, आ देखो टोटल इंटरवल है 0 to 2π, और एक आ गया π/4 और एक आ गया 5π/4, आ दोनों वैल्यूज लेनियां। इंटरवल्स किन्ने बन गए अपने को, इंटरवल्स बन गए 0 to π/4, राइट। दूसरा की बनेगा, क्योंकि 0 2π विच 0 भी इंक्लूड करना है, 2π भी इंक्लूड करना है, और फिर आ जाएगा π/4 to 5π/4, ये ओपन रहेगा। फिर तीसरा इंटरवल बनेगा 5π/4 सेमी टू क्लोज्ड, ठीक है। आ वाले इंटरवल्स तुहाडे कोल रहणगे। 3 इंटरवल्स दे आपां चेक करना है कि जिहड़े फंक्शनस ने वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ओके, चलो तो पहले फर्स्ट विच करते हैं, फॉर सेमी इंटरवल 0 to π/4। हुण देखो 0 पासे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 0 इंक्लूड करना है, तो f' की वैल्यू चेक कर लो। फिर f' की वैल्यू देखो, ध्यान नाल देखो, 0 इंक्लूड है और π/4 तक जाना है। ਇਹਦਾ मतलब आ ਜਿਹੜਾ इंटरवल है ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਾਈ कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों की होंगे ने, पॉजिटिव होंगे ने ना, तो दोनों ही पॉजिटिव है, वैल्यू की आएगी ग्रेटर देन 0 ही आएगी, है ना, ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगी। क्यों? क्योंकि cos माइनस साइन है, cos विचों माइनस साइन, तो आ ਇਹਦੀ वैल्यू ਵੱਡੀ, ਇਹਦੀ छोटी वैल्यू आएगी, ताई तो पॉजिटिव वैल्यू आई हुई है ना, तो
वैल्यू कितनी आएगी फिर आ भी पॉजिटिव है एज इट इज वैल्यू जी है वो ग्रेटर देन 0 आ गई अपने को। बोलो समझ आ गया। 0 चेक करके देख लो ना cos 0 1 है और sin 0 कितना होता है 0 तो 1 माइनस 0 कितना होया 1 दैट इज ग्रेटर देन 0। और फिर अगे आगे चलते जाओ इतने कितना आएगा π/4 नहीं लेना क्योंकि ओपन इंटरवल है। π/4 तो पहले वाली वैल्यू लेनी है। π/4 के ऊपर cos π/2 कितना होता है 1/2 अंडर रूट sin π/2 कितना होता है 1/2 अंडर। तो दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 1/2 अंडर रूट 1/2 अंडर क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर होती है ना तो 0 हो जाएगी। हुण 0 तो अगे वाली वैल्यूज आ रही ने क्यों आ रही ने क्योंकि पहले कितनी वैल्यू सी की cos 0 ते कड्डी सी आपां तां कितनी आई सी कि 1 और इहदी कितनी आई सी sin 0 ते वैल्यू 0 आई सी ना। तो पहली सब तो पहला जिहड़ी वैल्यू आई सी कि cos 0 माइनस sin 0 दैट इज 1 ग्रेटर देन 0। हुण 0 तो अगे जा रहे हैं 0 तो अगे जाने का मतलब है 1 तो अगे जा रहे हैं 1 तो अगे। तो जदों अगर आप मान लेने हैं वैसे तो इतने ओपन इंटरवल है तो π/4 तो लेना नहीं। मान लो अगर आप π/4 ले रहे हैं तो sin π/4 और cos π/4 की वैल्यू बराबर होती है ना 1/2 अंडर तो वैल्यू कितनी आ गई 0 है ना। तो π/4 आप लेना नहीं तो इस करके 1 और 0 ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆਣਗੀ ਉਹ प्लस वैल्यूज ही ਰਹਿਣਗੀਆਂ। समझ आ गई ना। ਇੱਥੇ 1 है cos और sin की वैल्यू ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ पुट करांगे तो f' की वैल्यू कह लो है ना। f' की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है 0 के ऊपर और 0 और π/4 के ऊपर भी 1 और 0 के ਵਿੱਚ है तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज तो है ने। तो कहने का मतलब की है f' इज पॉजिटिव फॉर 0 to π/4। बोलो गल समझ आ गई होनी है। ये π/4 तुसी मैं तुहानू ओवें तुहानू पुट करके दिखाया है पुट नहीं करना आपां क्योंकि ओपन इंटरवल है π/4 इज नॉट इंक्लूडेड। ਇਹਦਾ मतलब की है 1 और 0 तो अगे दी वैल्यूज ने। कहने का मतलब की है कि 1.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन 0.9 और 1 तो ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही ने ना। दैट्स व्हाई f' इज ग्रेटर देन 0। बोलो समझ आ गया किस इंटरवल दे विच 0 और π/4 दे विच। तो ਇਹਦਾ मतलब fx की बनेगा फिर fx इज इंक्रीजिंग। ठीक है ये रख लो इस इंटरवल दे विच आ फर्स्ट सी अपना। हुण आ जाओ सेकंड इंटरवल दे विच। सेकंड इंटरवल है π/4 टू 5π/4 ओपन है दोनों ही। π/4 भी नहीं लेना और 5/4 भी नहीं लेना इन बिटवीन वैल्यूज लेनी है। π/4 45 डिग्री होता है ना और 5π/4 जो होता है वो 225 होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट तक पहुंच गया। हुण थर्ड क्वाड्रेंट में देखो जरा f' की वैल्यू जी है ना। थर्ड क्वाड्रेंट दे विच दोनों नेगेटिव होंगे cos भी नेगेटिव और sin भी नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट दे विच। फर्स्ट तो जाते जाते थर्ड क्वाड्रेंट तक जाना है। ठीक है सैकेंड इंक्लूड हो जाएगा। सैकेंड दे विच सैकेंड जाते जाते साइन पॉजिटिव आ नेगेटिव थर्ड विच दोनों ही नेगेटिव फर्स्ट विच दोनों ही पॉजिटिव। ठीक है तो वो तो पॉजिटिव रहेंगे लेकिन हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते जाते f' की वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक दोनों नेगेटिव ने माइनस माइनस तो कितना आया माइनस और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ प्लस जोड़ रहे हाँ माइनस और प्लस विच ਆਪਾਂ प्लस जोड़ रहे हैं। ठीक है तो टोटल वैल्यू जो बनेगी cos ध्यान नाल देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट विच पॉजिटिव है साइन भी पॉजिटिव है। थर्ड विच जाते 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 जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में जाना ध्यान नाल देखो इधर थर्ड क्वाड्रेंट में जाते 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 दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। तो f' जो है टोटली इनू इनू रहन दो तुहानू कंफ्यूज क्रिएट कर देगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों की वैल्यू जी आ जाएगियां वो नेगेटिव आएगी तो f' कितना आ जाएगा फिर अपने को लैस दैन 0। ਇਹਦਾ मतलब की बनया कि fx जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट तक आते आते वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है हुण आ जाओ थर्ड पॉइंट के ऊपर। ठीक क्योंकि दोनों वैल्यूज नेगेटिव ने इस करके fx जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है π/4 और 5π/4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ वैल्यू देख लो ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ के देख लो। हुण अगर ध्यान नाल देखो इधर अगर π/4 वैसे तो ओपन इंटरवल है नहीं अगर तुहानू दोबारा भी दसां तां एक बार तुसीं ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ वैल्यू चेक करके देखो कि वैल्यू जा किधर ਨੂੰ रहीਆਂ ने किधर ਨੂੰ मूव कर रही ने। अगर आप π/4 की गल करते हैं सैकेंड पॉइंट आप डिस्कस कर रहे हैं दोबारा तो f' π/4 के ऊपर चेक करो जरा ये हो गया 1/2 अंडर रूट माइनस 1/2 अंडर रूट
ठीक है, कितना हो गया 0, ठीक। और फाइनल पॉइंट के ऊपर भी चेक कर लो 5π/4, ठीक है, वो कितना हो गया cos ऑफ 5π/4 माइनस साइन ऑफ 5π/4। ਹੁਣ आ हो गया cos ऑफ पाई प्लस π/4 माइनस साइन ऑफ पाई प्लस π/4। समझ आ रहा होना है ना, इन्होंने मतलब दस रहे हैं कि वैल्यूज़ किस तरह नाल मूव कर रही हैं, 0 और हम नैगेटिव पासे आएंगे। पाई प्लस π/4 का मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट दे विच cos की होंदा है नैगेटिव होंदा है, ठीक है, माइनस ये है पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4 दे साइन आ गया ना, तो आ कितना हो गया फिर अपने को आ हो गया माइनस, है ना, तो माइनस साइन ऑफ π/4। हुण वैल्यू भरते हैं, आ हो गया 1/2 और माइनस कितना हो गया 1/2, क्योंकि वैल्यूज तो बराबर ही आनी सी ना, तो कितनी आई 0। लेकिन जा किस पासे रहे हैं, जा आप रहे हैं नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि आ देखो ना इधर प्लस सी सारे साइन और फिर इधर साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव और दोनों ही नेगेटिव, ठीक है। तो 0 और 0 के विच जा रहे हैं लेकिन नेगेटिव वैल्यू के थ्रू होके जा रहे हैं, गल समझ आ रही होनी है। तो इसका मतलब f' जो है वो लेस दैन 0 है। तो इन्ने ज़्यादा इनू एक्सप्लेनेशन में ना जाओ, दोनों ही नेगेटिव है, इस करके मतलब की बनया, इस करके मतलब ये बनया कि ये डिक्रीजिंग फंक्शन होएगा, f' इज लेस दैन 0। हुण आ जाओ थर्ड के ऊपर, थर्ड पॉइंट 4 5π/4 टू 2π भर सकते हम, ठीक है। वो देखो हुण भर के f' ਇਹਦਾ थर्ड क्वाड्रेंट ਵਿੱਚ है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ है, ठीक है। 2π भरो, cos 2π और sin 2π वैल्यू जब हम मैक्सिमम वैल्यू भरांगे तो देखो कितनी आएगी, cos 2π ਤੇ चेक कर रहे हैं माइनस sin 2π, ठीक है। पाई प्लस पाई cos 2π ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, sin 2π ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 1 इज ग्रेटर दैन 0। ਤਾਂ f' ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ मैक्सिमम वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ +1 आ रही है, तो f' जो आ रहा है वो ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। दिस मीन्स दैट f(x) इज इंक्रीजिंग। ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ कि फस्ट इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ 0 to π/4 ਦੇ f'(x) ग्रेटर दैन 0 है तो इंक्रीजिंग है। सैकेंड इंटरवल ਦੇ ਵਿੱਚ π/4 और 5π/4 ਦੇ ਵਿੱਚ f'(x) लेस दैन 0 है, दैट मीन्स डिक्रीजिंग है। और थर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ f'(x) ग्रेटर दैन 0 है, f(x) इज इंक्रीजिंग फंक्शन। सो आ ती ਤੁਹਾਡੇ एग्जांपल्स ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਓਕੇਜ਼ਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ कि होर ज़्यादा करो एग्जांपल्स, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ज़्यादा हेल्प होएगी और ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ मतलब अच्छे तरीके ਨਾਲ टॉपिक ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ कि टॉपिक वास्ते ਵਿੱਚ है ਕੀ, है ना। ਹੁਣ एग्जांपल ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸੋਲਡ एग्जांपल्स ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ एग्जांपल्स ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ टॉपिक है कि फंक्शन ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ f'(x) ਕੱਢਣਾ ਹੈ और f'(x) ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰ ਕਰਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਟਰਵਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਹ f'(x) ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ग्रेटर दैन 0 है ਤਾਂ इंक्रीजिंग है, f'(x) ਦੀ ਵੈਲਿਊ अगर लेस दैन 0 है तो डिक्रीजिंग है और f'(x) की वैल्यू 0 है तो कॉन्स्टेंट फंक्शन है। बस आ चीज़ा चेक करनिया ने, लेकिन क्वेश्चन थोड़े जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਲਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਨੇ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 13। ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਸ NCERT ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਖਤਮ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਫॉर द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस।